Please confirm if I am audible to everyone. Vivek, Yes, Ansul, yeah, thanks. And I hope my screen is visible to all of you. The first slide. Okay. First of all, thank you all. Thanks for joining this demo session. And we will ensure that you will enjoy uh, the session once we will execute the slides or we'll go through the slides. So thanks again for joining this session. So mostly we will talk about AWS, that is cloud, and the AI. So today is the first demo session for combined technologies, these two technologies, AWS and AI. So we'll go slowly one by one, and we'll start with our introduction session. So we are IT Job Institute situated in Hinjawadi, Pune, and we are government registered organization and we are private limited firm. And our uh, courses and trainings are mostly job oriented. So we'll focus on the jobs. We'll not go in depth or long duration courses like 7 months, 8 months, or years. So we try to finish all of our courses in 3 to 4 months. And we will provide 100% interview assistance. And most of our mentors or trainers are industry experts. So it's not like our trainers are from colleges or schools or some institute, but we recommend our trainers should be from reputed IT firms. And we also provide our recorded sessions for all of our classes. And considering jobs, so you can always you can always search jobs in market, but parallelly we provide options from our institute where we have tie up with different organization where we used to get job opportunities or job openings, and you can apply on those jobs as well. So you can access those jobs from day one. Okay. So we'll focus on our students or employees not only to provide training, but we our mission and vision is mostly to provide hands-on training and full support so they can achieve long-term career success. Okay. And we mostly focus on industry standard trainings, that is futuristic technologies. So current in market situation, you can see that old jobs are wiping out from market. So जितने भी jobs हैं पुराने technologies पे वो market से जाने वाले हैं. तो हमारा focus mostly futuristic technologies में होता है. तो हमारा लाइव ट्रेनिंग्स होता है. हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस हम प्रोवाइड करते हैं. मोस्टली we also focus on communication personality development, and if you require we also provide personalized guidance. Okay. एंड जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं. ये स्कूल्स और कॉलेजेस वाले प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं. जो इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स एक्चुअल एग्जीक्यूट होते हैं आईटी इंडस्ट्री में, वो सारे प्रोजेक्ट्स हम कवर करते हैं अपने ट्रेनिंग्स में, जिनमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है. ओके. तो जो ये कोर्स है दैट इज क्लाउड एंड एआई, दैट इज मोस्ट डिमांडेड टेक्नोलॉजी इन मार्केट. आपने तो अभी सुना ही होगा कि क्लाउड और एआई का कितना डिमांड है मार्केट में. सब लोग एआई के बारे में बात करते हैं, एंड एड ऑन क्लाउड प्लस एआई इज ऐसा टेक्नोलॉजीज है जो आपके प्रोफाइल को बहुत वैल्यू ऐड करता है. तो इस कोर्स को कौन कौन कर सकते हैं? सो फ्रेशर्स, करियर गैप वाले कैंडिडेट्स जिनका आईटी कोई बैकग्राउंड नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, वो इस कोर्स को ऑप्ट आउट कर सकते हैं. जो एम्प्लॉयज पहले हैं बट अभी ड्यू टू सम रीजन, पर्सनल रीजन, करियर गैप हो गया है, वो लोग इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी गेट फ्रॉम आवर enquiries or leads or students that they don't want coding. Okay, so उनको कोडिंग नहीं करना है मोस्टली.
सो ये ऐसा कोर्स है जिसमें आपको लो कोडिंग रिक्वायरमेंट होता है, बट पैरेलली आपके पास कोडिंग कैसे होता है उसका नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए आपके पास। ओके। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कोडिंग का। इन डेप्थ नॉलेज कोडिंग का जरूरत नहीं होता है इस कोर्स के लिए। ओके। So coming to the next slide, we also get several questions from our students that हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, हमें जॉब्स कैसे होंगे, कैसे लगेगा, हमारा करियर गैप हो गया है, हम डिप्लोमा होल्डर्स हैं, हमारा कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, तो हमारा जॉब्स कैसे लगेगा। तो वो सब क्वेश्चंस के आंस वो सब क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया, जहां हम AWS प्लस एआई आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना होता है, आपको अपस्किल करना पड़ता है। ठीक है। आपको अपने पर्सनालिटी एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो आपका ईयर गैप है, आपको अभी कोई जॉब नहीं है, कोई होप आपके पास नहीं है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपके फ्रेंड्स का जॉब लग गया है, आपका जॉब नहीं लग रहा है, तो वैसे लोगों को कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। यू कैन ऑलवेज गो थ्रू विद दिस करिकुलम एंड कोर्सेज, एंड मार्केट में ट्रस्ट मी बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और आने वाले हैं, अगर आप AWS और एआई दोनों सीख लेते हैं तो अगर आपका कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, बी टेक, BSc, BCA, BCom, BBA, BA, MBA, MCA, आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आपका करियर गैप है, आपका कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं है, तो इस कोर्स को करके आप आगे बढ़ सकते हैं अपने करियर में। ठीक है। अभी जो क्लाउड का जो मार्केट है, मार्केट में तीन चार ही सेक्टर्स होते हैं मेनली, जहां आईटी रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है। जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेलीकॉम हो गया, ई-कॉम। बैंकिंग में कौन कौन आ जाएंगे, जैसे टॉप टायर इंस्टीट्यूशन आप देखेंगे तो सिटी बैंक हो गया, बार्कलेस हो गया, BNY हो गई, UBS हो गया, नॉर्दर्न ट्रस्ट हो गया। ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब क्लाउड प्लस एआई में हायर करती है। हेल्थ केयर में आपका फार्मा इंडस्ट्री हो गया, एमक्योर हो गया, एल्केम हो गया, सो ये सारे कंपनीज जो है वो हेल्थ केयर में आती है। टेलीकॉम में आपका हो गया, सिस्को हो गया, आइडिया हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, तो ये सारी कंपनीज अगेन क्लाउड प्लस एआई में हायर करती है। ई कॉम तो क्लाउड और एआई के बिना चलता ही नहीं है। सो ई कॉम इन द सेंस Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेप्टो, आपका स्विगी हो गया, आपका और जितने ई कॉम वाले कॉमर्स हैं, सबको क्लाउड प्लस एआई में आना ही है। विदाउट क्लाउड और एआई ये सारी कंपनीज एग्जीक्यूट नहीं कर सकती हैं अपनी बिजनेसेस। ठीक है। तो विद दिस कोर्स यू विल ओपन योर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, नॉट लिमिटेड विथ वन सेक्टर। सो बैंकिंग हो गया, बैंकिंग का बहुत बड़ा सेक्टर है इनसाइड पुणे, विद इन geographies outside India, different countries, different geographic location, different region। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, आप कहीं भी अप्लाई करके जॉब ढूंढ सकते हैं। ओके। फिर लोग बोलते हैं कि हमारा पैकेजेस क्या होगा अगर हम कोर्स को करते हैं, कैसे स्टार्ट करना होगा। तो अभी आपको जब अभी आपके पास जॉब नहीं है, यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब और यू आर ट्राइंग टू हंट योर न्यू जॉब, so start with the freshers at least. So starting package you will get at least 3 to 4 lakhs, but it's not limited with the bracket of the salary, but you can explore a lot. So IT industry is a C, so you can go from 20 lakhs to 40 lakhs to 50 lakhs as well. So it depends on experience and your knowledge and your skill sets. तो ऐसा नहीं है कि पैकेज लिमिट रहता है। क्लाउड और एआई जो है ये हमेशा इवॉल्व होती है, हमेशा ये टेक्नोलॉजीज चेंज होती है, बट क्लाउड जो है वो कभी मार्केट से नहीं जाने वाला है। ठीक है। क्लाउड जो ऐसा टेक्नोलॉजी है वो सबको अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। सो यू हैव टू ऑलवेज चूज सच टेक्नोलॉजीज इन योर करियर वेयर इट विल नॉट गो फ्रॉम मार्केट। ओके। सो क्लाउड तो है ही, बट अगर आप उसमें एड ऑन कर देते हैं एआई, तो आपके प्रोफाइल में ये बहुत बड़ा वैल्यू ऐड करता है। ओके। हाँ, एक चीज, सो अगेन, सो इट डजंट डिपेंड ऑन योर ईयर ऑफ पासिंग,
आप कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, इस पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट्स। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी हायरिंग होगी, और आप वहां जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट अच्छी इंक्रीमेंट आपको मिलेगी। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट। सो 50% jobs in IT market is covered by cloud. Okay, एंड आप एड ऑन करते हैं एआई तो ये 60 to 70% कवर होता है। तो आपको कैसे जॉब सर्च करना है? सो not limited with TCS, Infosys, Wipro, Accenture, TechGemini, Capgemini. These are the service industries, but you can always opt for product companies like Flipkart, Myntra, Jio, other product companies as well. Facebook हो गया, Meta हो गया, so ये सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड में और एआई में हायरिंग करती है। तो आपको जॉब सर्च कैसे करना है? नौकरी हुआ, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गई, फाउंडेड हो गई, ये सारी जॉब पोर्टल्स में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट हमारा इंटरनल टाइप भी होता है डिफरेंट कंपनीज से, जहां हमारे पास डायरेक्ट ओपनिंग्स डिटेल्स आती है, जहां हम आपका सीवी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपको वहां जाके जॉब इंटरव्यूज अटेंड करना होगा। ठीक है, so that is exclusive access from IT Jobs Institute. Okay, okay, so cloud ही क्यों? So this is a short video. Okay, so cloud क्यों ऑप्ट कर रहे हैं सारे इंडस्ट्री? So हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्लाउड ही क्यों। So for an example, if you have one organization, आपके पास एक कंपनी है, ठीक है, आपको वो सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको सेटअप करने के लिए मनी चाहिए होगा, ठीक है। और ये मनी आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, आपको सीपीयू चाहिए होगा, आपको रैम चाहिए होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, आपको रेंटल अपार्टमेंट, रेंटल ऑफिस स्पेस चाहिए होगा, जहां आप ये सारे सेटअप करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, या सो ये सारी चीजें आपको सेटअप करना पड़ेगा कहाँ पे? आपके ऑफिस के अंदर। तो इसके लिए आपको कॉस्ट लाया जाएगा। ठीक है, और ये कॉस्ट जो होता है वो एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। सो इसको आप एसेट नहीं बोल के आप इसको लाइबिलिटीज बोल सकते हैं। ये कंपनी का जिम्मेवारी है सबको संभालने के लिए। ठीक है, सो फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर इन न्यू इन एनी सिटी। सपोज आप पुणे में आप नए हैं, आप नए आए हैं और आपको घर खोजना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप रेंट में खोजना स्टार्ट करेंगे घर। और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक अपार्टमेंट बाई कर सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है। लेकिन आपके पास अनसर्टेनिटी है कि आप पुणे में कितने दिन रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चंस मार्क होंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन चलेगा कि मैं रेंट पे अपार्टमेंट लूं या फिर एक फ्लैट खरीद लूं। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोच रहे हैं कि आप पुणे में लॉन्ग टर्म नहीं रहने वाले, तो आप ऑप्ट करेंगे रेंट इंस्टीड ऑफ बाइंग ऑफ वन न्यू फ्लैट विथ कॉस्ट ऑफ 1 CR रुपीज। तो ऐसी कंपनी सोचती है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अगर सेटअप करते हैं, इतना कॉस्ट डालते हैं, और कल को कंपनी लॉस में चली गई या कंपनी बैंक करप्ट हो गई, तो ये सारे एसेट्स का क्या होगा? इसलिए वो रेंट पे जाती है। रेंट मीन्स क्लाउड। सो क्लाउड क्या है? क्लाउड इज काइंड ऑफ रेंटिंग एन अपार्टमेंट। ठीक है, कि मैंने किसी से सीपीयू ले लिया, मैंने किसी से इंफ्रास्ट्रक्चर ले लिया, मैंने इन्वायरमेंट ले लिया, वहां पे रैम ले लिया। तो ये सारी चीजें जो है आप क्लाउड में रेंटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे रेंटिंग कौन करता है? ठीक है, तो रेंटिंग एन अपार्टमेंट और रेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, you can relate both things with cloud. So cloud is nothing but आप रेंट पे कुछ लेने वाले हैं। तो रेंट पे क्या ले रहे हैं? रेंट पे हम सीपीयू लेते हैं, मेमोरी लेते हैं, ठीक है, और भी चार्ज सर्वर्स लेते हैं, डेटाबेसेस लेते हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें जो एक आईटी कंपनी को एक रन करने के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीजें हमें रेंट में लेना पड़ता है। तो ये सब जो रेंट पे हम लेने का बात करते हैं, वो प्रोवाइडर्स कौन है? तो मार्केट में प्रोवाइडर्स बहुत सारी कंपनीज हैं।
जिसमें AWS हो गया, एज्योर हो गया, ठीक है, GCP हो गई जो गूगल का है, रैकस्पेस एक खुद एक कंपनी है जो बहुत बड़ी क्लाउड प्रोवाइडर है कंपनीज को, IBM का खुद का IBM सॉफ्टवेयर लेयर है जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, और अदर कंपनीज है जो 20.7% मार्केट कैप कवर करती है क्लाउड में। लेकिन सबसे बड़ा मार्केट कवरेज अगर आप देखोगे 41.5% वो है AWS का, Amazon वेब सर्विसेज। तो Amazon वेब सर्विसेज, AWS जो है वो मार्केट कैप्चर बहुत बड़ा है, ठीक है। और AWS को क्यों ऑप्ट किया जाता है, क्योंकि ये इजी टू यूज है। अगर आप ये वाला स्लाइड देखते हैं यहाँ AWS का, तो ये इजी टू यूज है, सिक्योर है। सिक्योर मीन्स आपको एंटीवायरस, अगर आपका लोकल है आपके कंप्यूटर में, आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स रहता है, तो ये सारी चीजें AWS Amazon खुद मैनेज करती है। रिलायबल है, रिलायबल मीन्स क्या कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि Amazon बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो यू कैन ट्रस्ट ऑन Amazon, ठीक है। बेटर एक्सेसिबिलिटी है, कभी डाउन नहीं होगा, कभी आपका अभी लोकल इंटरनेट है आपका तो कभी डाउन रहता है, कभी अप रहता है, तो ये आपको प्रॉब्लम करता है काम करने में। बट ये प्रॉब्लम Amazon वेब सर्विस सॉल्व करता है। स्केलेबिलिटी है, अभी आपकी कंपनी छोटी है, कल को कंपनी बड़ी हो रही है, अभी आपको 10 CPU का जरूरत है, अगर आपको बिजनेस ज्यादा मिलता है कंपनी को तो 100 CPUs का जरूरत पड़ेगा, 100 सर्वर्स का जरूरत पड़ेगा। तो हम खरीदने तो नहीं जाएंगे उतना उतना पैसा, इंस्टेड ऑफ वी विल आस्क Amazon टू प्रोवाइड सर्वर्स, CPU एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो Amazon स्केलेबिलिटी में भी ध्यान देता है, ठीक है। स्पीड एंड एजिलिटी, स्पीड जो है उसको लिटेंसी बोलते हैं, कि कितना फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है आपको। तो दैट इज वेरी यूज। अभी आपका लोकल इंटरनेट है, सम टाइम आपका स्पीड डाउन रहता है, सम टाइम स्पीड आपका अप रहता है, आप किसी सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाते हो, तो ये सारी चीजें AWS के साथ नहीं है। तो स्पीड एंड एजिलिटी इज वेरी इफिशिएंट इन Amazon। नो नो कैपेसिटी लिमिट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं कि आपको 100 CPU चाहिए, कल को 200 चाहिए, कल को 300 चाहिए, 400 चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी को थाउजेंड्स में इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दे आर नाउ ऑप्टिंग फॉर क्लाउड ऑप्शंस, ओके, इधर AWS में और Azure में। Azure is Microsoft and AWS is Amazon, so these two are the market leaders in cloud, okay, but AWS का बहुत बड़ा मार्केट है। सो अगेन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि बाइंग अ कार और रेंटिंग अ कार। सो बाइंग अ कार इज nothing but you can buying your infrastructure and you are keeping those assets in your office, ओके। आपने अगर कार खरीदा है तो आपको उसको घर में रखना है, उसकी कार को रखने के लिए जगह चाहिए, उसको क्लीनिंग करने के लिए एक स्टाफ चाहिए, उसमें आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा, उसका आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और वो वैल्यू भी डिप्रिशिएट होगा ओवर द टाइम। तो सेम चीज होता है अदर एसेट्स के लिए जो आईटी में यूज होता है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, रैम हो गया, धीरे धीरे जैसे जैसे वो ओल्ड होगी उसका वैल्यू भी कम होगा। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग अ कार, रेंटिंग अ कार इज बेटर ऑप्शंस फॉर एनीवन, अगर आपका उतना बजट अलाउ नहीं करता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, सेफ्टी कंसर्न्स है, तो यू कैन गो फॉर बाइंग अ कार। वैसे ही अगर आपका बजट अलाउ करता है तो ऑन प्रीमाइसेस यू कैन सेट अप ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेंटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया क्लाउड की बातें। अभी हम क्लाउड में जो सर्टिफिकेशंस होता है, जो मार्केट में डिमांड है जिस जिस सर्टिफिकेशन का, तो आफ्टर फिनिशिंग दिस कोर्स यू कैन ऑलवेज गो फॉर फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन, दैट इज AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर, ठीक है। सो जो ये बॉटम में जो आप देख रहे हैं फंड फंड फाउंडेशन वाला सेक्शन, ये वाला सर्टिफिकेशन आप ऑलवेज ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर completing the course. But once you will get more and more experience with your projects and with your number of years experience, you can always explore for other certification like solution architect and developers options. प्रोफेशनल लेवल पे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का है और डेवऑप्स इंजीनियर्स का भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन यहाँ पे आता है AWS सर्टिफाइड मशीन लर्निंग, ठीक है।
तो मशीन लर्निंग इज नथिंग बट पार्ट ऑफ एआई। ओके, वो हम थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे अभी। तो बट you will get these options for certifications as well. Okay, so with this course we are providing various topics under AWS, that is cloud fundamentals, storage and services, networking, infrastructure as code, monitoring and logging, compute services, storage services, security and IAM। ठीक है, अभी हम इस कोर्स के साथ आपको एडिशनल ऑफर क्या दे रहे हैं, जिसमें हम आपको एसक्यूएल फ्री दे रहे हैं, लाइनेक्स फ्री दे रहे हैं, नेटवर्किंग फ्री दे रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज एंड इंटरव्यू असिस्टेंस फ्री देंगे, प्लस एआई भी हम आपको एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं इस कोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया क्लाउड की बातें। अभी हम एआई की तरफ स्लोली बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चंस है, यू कैन आस्क। आई विल टेक अ पॉज फॉर 5 to 10 seconds. Any questions from anyone? Okay, I'll take it as no. Okay, coming to AI. So now everywhere people are talking about AI, artificial intelligence. Okay, so AI is not a bubble and it will not go from the market. अभी आपको AI अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आपके। ठीक है, तो AI adoptions mandatory है for everyone who is in IT as well as इन योर डे टू डे वर्क। ओके, सो आपने सुना होगा कि यही जॉब्स ले जा रहा है एंड पीपल आर गेटिंग पैनिक एंड दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर इंक्रीमेंट एंड जॉब्स। सो इट्स करेक्ट, मार्केट में ऐसा ही है। सो एआई विल टेक 4 out of 5 जॉब्स। ओके, सो अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज रिसेंट डेज के, तो डेल फायर्स 12.5K employees to focus on AI. Okay, Microsoft layoff 1500 workforce. Okay, there are other news as well. MIT study finds AI can already replace 11.7% of US workforce. Impact of AI in today's job market, आप अगर देखेंगे तो 2019 से लेके 2025 तक इम्पैक्ट जो है एआई का वो ह्यूज है, बहुत बड़ा है। ठीक है, अभी आप और भी रिसेंट कमेंट्स देखेंगे तो वॉल स्ट्रीट prepare for 2 lakhs jobs cuts as AI takes over report। अभी जो चैट जीपीटी का जो सीईओ है astonishing, he also forecasted that AI to overhaul 95% of marketing tasks। और वो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, हर लोग जो एडवर्टीजमेंट है उसके लिए एआई का यूज कर रहा है। ठीक है, okay, I'm not going in very depth on these topics, but there was one news where Chinese game companies has an AI CEO. Okay, so CEO also they are replacing by AI agents. Okay, so this is a comment. We are an entire generation of people who are working in jobs which are not gonna exist without AI in next 12-15 months। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जॉब हम करते थे डे टू डे वर्क में, वो धीरे धीरे मार्केट से जाएंगी। जैसे पहले हम गूगल का यूज बहुत ज्यादा करते थे, कुछ भी पूछना रहता था, कुछ भी रिसर्च करना पड़ता था, कुछ भी जानना होता था, तो वी यूज टू टेक हेल्प ऑफ गूगल, बट नाउ वी आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। Okay, so you can see how the market and technologies are changing due to AI। ठीक है, if you try to work with AI you will win because AI won't replace you directly, but a person using AI will replace you। अगर आप AI नहीं सीख रहे हैं तो at some level of point आपको कोई ना कोई रिप्लेस करेगा, बिकॉज सारी टेक्नोलॉजीज में AI मैंडेटरी है अभी। ठीक है, तो जो भी मार्केट में अभी पैनिक है कि एआई जॉब लेके जाएगा, ऐसा नहीं है। सो फोरकास्ट
ऐसा भी है कि 78 मिलियंस न्यू एआई पावर्ड जॉब्स बीइंग क्रिएटेड फॉर अ पर्सन हु यूजेस एआई। तो अगर आप एआई में अपने आप को अपस्किल्स कर सकते हैं तो 2030 तक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होने वाली हैं। 78 मिलियन न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज बाय 2030। ओके, बट अर्जेंट अपस्किलिंग नीडेड टू प्रिपेयर वर्कफोर्स। सो अभी क्या हो रहा है, लोग अपने आप को अपस्किलिंग में नहीं ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अपस्किल नहीं करोगे अपने आप को तो जॉब नहीं है मार्केट में आपके लिए। ठीक है, नीति आयोग says AI cloud generate 4 million jobs by 2030. What jobs can AI actually create? ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं ओल्ड जॉब्स वर्सेस न्यू जॉब्स। पहले के जॉब्स जो डेवलपर्स होते थे, डेवलपर्स मैनुअली राइट रिपीटेटिव कोड्स, डिबग एक्सटेंसिवली एंड स्पेंड टाइम सेटिंग अप एनवायरनमेंट। बट एआई के आने से क्या होता है, एआई जनरेट कोड्स, स्निपेट, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व बग्स and automate environment setup. It also assists in monitoring system performance and predicting issues. Okay, इसका results क्या है? AI powered software develop being able to do the job of 5 old software developers. So अभी मार्केट में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का रोल खत्म होने वाला है, मार्केट से रहेगा बट जिनको एआई आता होगा। क्योंकि पहले स्क्रैच से कोड लिखा जाता था, अभी स्क्रैच से कोड लिखने का जरूरत नहीं है। आप एआई को प्रॉम्प्ट दो, वो कोड लिख कर देता है। ठीक है। अभी डेट पहले लोग डेटा एनालिस्ट का जॉब ढूंढते थे कि डेटा एनालिसिस करेंगे, उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, एक्सेल में काम करेंगे और डेटा एनालिस्ट बन जाएंगे। बट वो जॉब्स खत्म हो गया मार्केट से। एनालिस्ट स्पेंड आवर्स गैदरिंग एंड क्लीनिंग डेटा देन जनरेटिंग रिपोर्ट्स। अभी ये सारी काम मिनट्स में हो जाती है। ठीक है। सो एआई असिस्ट इन डेटा सिंथेसिस, generates comprehensive reports and provide insights through natural language prompts। एनएलपी बोलते हैं इसको, वो हम डिटेल्स में सीखेंगे। ठीक है। इसका रिजल्ट्स क्या है, एआई पावर्ड डेटा एनालिस्ट बीइंग एबल टू डू द जॉब्स ऑफ 5 old डेटा एनालिस्ट। और ये सब 5 मिनट्स में होता है, जिसके लिए पहले लोग आवर्स ऑफ टाइम और डेज ऑफ टाइम लेते थे। ओके। फाइनेंशियल प्रोफेशनल जॉब्स आर आल्सो गोइंग आउट फ्रॉम मार्केट। सो ओल्ड जॉब्स में फाइनेंशियल टीम क्या करती थी, मैनुअल प्रिपेयर करती थी रिपोर्ट्स, एक्सपेंसेस ट्रैक करती थी, एनालिसिस करती थी स्प्रेडशीट्स को फोरकास्टिंग के लिए। बट अभी एआई आने के बाद automates expense tracking, generates details financial reports and use predictive analytics for more accurate forecasting। अभी आपने रिसेंट न्यूज भी सुना होगा कि ENY ने जो डेटा शेयर किया था वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, वो एआई जनरेटेड रिपोर्ट था जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसके लिए उन्होंने पेनल्टीज भी भरा था। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। द सेम ट्रांजिशन इज हैपनिंग अक्रॉस ऑल दी वाइट कॉलर जॉब्स। लाइक वाइट कॉलर जॉब्स मीन्स टॉप टायर आईटी जॉब्स दैट इज अवेलेबल इन मार्केट राइट नाउ। सो ये सारी कौन सी चीजें हैं, डेवऑप्स, एमएल ऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड यूआई यूएक्स। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग मोस्टली एआई से कवर हो जाता है, जो कि इंस्टाग्राम में हो गए। अभी जो साइड में आप जो रोड साइड साइन बोर्ड्स भी देखते होंगे तो वो भी एआई जनरेटेड इमेजेस एंड कंटेंट होती है। ठीक है। तो वो सारी जॉब्स अब, जो पहले एक कोई सिंगल पर्सन मैनुअली डिजाइन करता था, अभी वो एआई करके दे रहा है। ग्राफिक डिजाइनिंग, जैसे पहले मूवीज वगैरह में वीएफएक्स को करने में काफी टाइम लगता था, बट अभी आप खुद से वीएफएक्स और मूवी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो खुद से। हाँ, यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है। लीगल कॉम्प्लायंस, पहले लॉयर्स वगैरह के पास लोग जाते थे, अभी चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे दो, वो बता देता है। ठीक है। एचआर रिक्रूटमेंट, मोस्टली ये भी जॉब मार्केट से निकल ही गई है, क्योंकि अभी उतना वर्कफोर्स चाहिए नहीं होता। जो इंटरनल आईटी कंपनीज में जो है, वो सारी काम जो एचआर का काम है वो अभी चैटबॉट कर रहा है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप सिविल वर्क में भी देखें तो रोबोट्स आ गए हैं, जो कि एआई पावर्ड रोबोट है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल अगर देखें तो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी एआई का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशंस है। जो बड़े बड़े मशीन्स है उसमें एआई मशीन लर्निंग मॉडल्स इंप्लीमेंट किए रहते हैं। ठीक है। टीचिंग एजुकेशन में तो है ही, क्लासेस वगैरह सभी अभी एआई से ही हो रहा है।
तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे एआई का इम्पैक्ट है. So since you are in the workshop, I want to think on how you could be that one person who has a job and get exponential salary hike. So that is fine. Okay, so I'll take a pause here again for 5 to 10 seconds and we'll start with AI course, actual course. Any questions from anyone? Okay. Okay. So let's start with the AI. So as I mentioned, for this course, there is no prerequisite and no coding and no education background is required. Okay. So before going to slides, I just want to ask question. What do you know about AI? Anyone? आप जब AI का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? How it is similar to something? Anyone? What is AI? This is very basic questions. Okay. Okay. No problem. So what do you know about AI? A computer to perform tasks which require human intelligence. ठीक है. Most famous part of AI which is using nowadays worldwide is चैट जीपीटी. अभी चैट जीपीटी जो मार्केट में आया था वो कब आया था? अभी हम लोग चैट जीपीटी यूज लास्ट 2-3 इयर्स से कर रहे हैं. दैट इज नवंबर 2022 में चैट जीपीटी वाज रिलीज्ड इन मार्केट. ओके. And when do you start using large language model like chat gpt? So chat gpt को हम लोग llm भी बोलते हैं, large language model. So large language model means आप कुछ लिखते हैं और आपको वहां से कुछ रिस्पॉन्स आता है. ठीक है. So what was your first reaction कि रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है? कि इस someone is typing, कोई बैकग्राउंड से टाइप करके हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है. ठीक है. हाउ कैन दे गिव सच गुड आंसर? ठीक है. वो एक ह्यूमन से कैसे इतना अच्छा आंसर दे रहा है? ठीक है. कहीं भी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं है, कहीं भी कोई एरर नहीं है. So as you can see here, chat gpt response is with no error and no grammatical mistakes. Okay. So how is it? कैसे हो रहा है ये? ओके. तो हम थोड़ा हिस्ट्री पे जाएंगे कि एआई स्टार्ट कैसे हुआ था, ये एआई हमने कैसे मिला था हमें. अभी हम एक प्रोडक्ट वाइडली यूज करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में है, दैट इज चैट जीपीटी. कुछ लोग जेमिनी भी यूज करते होंगे, अगर कुछ लोग एम्प्लॉय हैं तो को पायलट भी यूज करते होंगे ऑफिस में. ठीक है. अभी नवंबर 2022 में चैट जीपीटी वाज रिलीज्ड, जस्ट मैटर ऑफ 3 इयर्स. आप कब अपने फर्स्ट टाइम यूज किया था? एनीवन? ओके. सो मोस्टली 3 इयर्स पहले हमने चैट जीपीटी को यूज करना स्टार्ट किया था. ठीक है. सो हाउ इट वर्क्स? ओके. And okay, so let's go on history first, then we'll see how it works. Okay. So idea was in 1956, that is at the time of world war 1945, they thought machine thinks like human. Okay. The AI term has been with us since 1956. So 1956 से हमारे पास ये वर्ड एआई का है. ठीक है. सो मशीन कैन थिंक लाइक ह्यूमन, ये
भी हम सीखेंगे। उस समय क्या हुआ था कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया था इन्होंने वर्ल्ड वार के समय में, ठीक है, जिसका नाम एनिग्मा था। ओके, इफ दे यूज रेडियो एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर, अगर वो रेडियो कम्युनिकेशन यूज करते थे तो एनी वन कैन इंटरप्ट और इंटरसेप्ट एंड गेट द इंफॉर्मेशन। तो क्या होता था, रेडियो कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन लीक हो जाती थी। तो जर्मन ने क्या किया था, उन्होंने एक टूल डेवलप किया था और टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, एनिग्मा। ओके, तो ये क्या करते थे कि फर्स्ट दे इनक्रिप्ट द मैसेज एंड देन दे स्टार्टेड द कम्युनिकेशन टू अदर पार्टी। ओके, तो उस समय एनिग्मा को इन्होंने डेवलप किया था 1945 में, ठीक है। तो जो ऑपोजिशन थी वर्ल्ड वार में, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी कि डिक्रिप्ट करने में। तो एलन ट्यूनिंग करके एक जर्मन था, उसने एनिग्मा को डिकोड किया, ठीक है। एलन टर्निंग was able to decode enigma and ask for the fundamental questions that machine can think. Okay, वहां से मशीन कैन ऑल्सो थिंक स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर आया जेफरी हिल्टन। जेफरी हिल्टन ने फर्स्ट इन्वेंशन किया 2017 में। ही वर्कड विद गूगल एंड रोट रिसर्च पेपर अटेंशन इज ऑल यू नीड। ओके, इसको जब आप ये व्हाइट पेपर इन डिटेल्स में पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल्स में पता चलेगा, बट इसको जेफरी हिंटन को एआई का गॉड फादर माना जाता था। इसको अभी रिसेंट में नोबेल प्राइज भी मिला। हु टेल्स द वर्ल्ड इज व्हाट इज एआई। ओके, इसने एक टेस्ट भी बनाया, इसने नहीं, सॉरी, जो एलन टर्निंग था ना, एलन टर्निंग, इसने एक टेस्ट बनाया था, ठीक है। एलन टर्निंग पब्लिश कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस विच प्रपोज अ टेस्ट ऑफ मशीन इंटेलिजेंस कॉल्ड द लिमिटेशन गेम। तो ये दिस इज अ टेस्ट है जिसमें कोई भी मॉडल को ये टेस्ट पास करना पड़ता है कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। So recent model like ChatGPT Gemini has cleared this test, and passing this test means anyone cannot differentiate you are thinking with model or machine or human. You are dealing with machine or human. ठीक है, तो ये सारी टेस्ट थी उस समय। ये हम हिस्ट्री का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय प्रॉब्लम क्या था कि मॉडल को ट्रेन करने का, क्योंकि उस समय हम डेटा नहीं था हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास डेटा है, ऑर्गेनाइजेशन के पास भी डेटा है, सभी के पास डेटा है। ओके, सो वी कैन ट्रेन द मॉडल विद द हेल्प ऑफ डेटा। जो भी हम डेटा फीड कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी को आप रोज प्रॉम्प्ट देते हैं कि मेरे लिए डाइट चार्ट प्लान कर दो, या मेरे आसपास जो रेस्टोरेंट है उसका फीडबैक दे दो, या मेरे फोटो को एडिट कर दो। तो ये आप जो डेटा दे रहे हो चैट जीपीटी को, वो आप नथिंग बट ट्रेन कर रहे हो अपने मॉडल को, ठीक है। वो मॉडल ट्रेन कर रहा है, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए। जब नेक्स्ट टाइम आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो और इफिशिएंट रिस्पॉन्स देगा आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, डेटा पहले नहीं थी, अभी डेटा है। तो इसको बोलते हैं, दो टर्म्स होती है, एक कंप्यूट होती है फॉर ट्रेनिंग दिस मॉडल्स। आपको जब आप प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, तो आपको लगता है कि इट्स वेरी इजी टू डील विथ सच मॉडल्स, बट बैकग्राउंड में जो एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, वो बहुत ह्यूज होता है। ठीक है, कैसे ह्यूज होता है, क्योंकि ये किसी भी मॉडल को ट्रेन करने में जीपीयूज लगते हैं, सीपीयूज नहीं, जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। इज स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that rapidly process images and video using parallel processing for huge numbers of calculations। तो बैकग्राउंड में लार्ज नंबर ऑफ जीपीयूज लगते हैं जब हम लोग यहाँ से मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव टास्क है, ठीक है। तो दैट इज देयर, एंड देयर इज वन मोर टर्म, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है ना कि when I ask question to chat gpt, does it know the answer or predict the answer? Sometimes क्या होता है कि
चैट जीपीटी को आंसर पता नहीं होता है, बट वो यहाँ वहां से एक्सट्रैक्ट करके वो आंसर देने का क्वेश्चन करता है, कोशिश करता है। ठीक है, तो वो हेलोजिनेट करता है। ओके, बट at some level they are correct, but at some level they are also not correct. Okay, even chat gpt doesn't know the answer, it gives some text that sounds good but it's not the correct one. Okay, अभी हम देखेंगे न्यूरॉन्स और ब्रेन। न्यूरॉन्स क्या होता है? सो chat gpt requires 1.3 parameters and took 4 months to train, and 2000 GPUs they used to train. So अभी इस टर्मिनोलॉजीज में हम नहीं जाते हैं, जीपीयूज क्या है, ठीक है, पैरामीटर्स क्या है, एंड मॉडल ट्रेनिंग आपको समझना चाहिए कि मॉडल ट्रेनिंग क्या होता है। कि जो हम डेटा फीड करते हैं किसी मॉडल को, मॉडल मीन्स जैसे चैट जीपीटी इज वन मॉडल, अपना जेमिनी है एक मॉडल, सो दे आर द मॉडल्स which we are training. So ह्यूमन ब्रेन्स इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड लर्निंग मेथड इन ऑल स्पीसीज। ठीक है, जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। ओके, एंड 37 ट्रिलियन न्यूरॉन्स इन वन सिंगल यूनिट ऑफ द ब्रेन। हमारा जो एक सिंगल यूनिट ब्रेन होता है उसमें 37 ट्रिलियन न्यूरॉन्स होता है। ठीक है, 37 ट्रिलियन न्यूरॉन्स कैन फायर विथ स्पेंडिंग 20 वॉट्स ऑफ एनर्जी। तो जो इतना छोटा ब्रेन है वो 37 ट्रिलियन न्यूरॉन मिलके 20 वॉट का एनर्जी ऑक्युपाई करता है। ठीक है, 1 आवर में। एंड कंपेयरिंग विथ एआई मॉडल, कंप्लीट डेटा सेंटर इज रिक्वायर्ड टू रन। इतना ही काम करने के लिए एआई मॉडल को एक डेटा सेंटर का जरूरत पड़ता है, जितना एक ह्यूमन ब्रेन का एक यूनिट लेता है छोटा सा काम करने के लिए। इसलिए ट्रेनिंग ऑफ दिस मॉडल्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ओके, ओके, सो अगर आप अभी देखेंगे राइट नाउ इन करंट सिचुएशन इन मार्केट, और जो इंडस्ट्री में जो एआई का बात चल रहा है, व्हाट डू वी वांट टू अचीव और व्हाट दे वांट टू अचीव। ओके, सो यहाँ पे 3 टर्म्स है, एएनआई, एजीआई और एएसआई। ओके, सो द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस like ChatGPT and other models, where we are now better than human like playing chess. ठीक है, सो चैट जीपीटी एंड अदर मॉडल्स वो क्या है, जो ह्यूमन से अच्छा चेस खेल लेता है। ठीक है, बट अपना मिशन क्या है? एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी जो है चैट जीपीटी जो है वो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, ह्यूमन की तरह काम कर सकता है, लेकिन ह्यूमन से बेटर नहीं है। तो अभी हम लोग उसको एएनआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल नैरो नैरो इंटेलिजेंस, बट हम स्लोली बढ़ेंगे एजीआई की तरफ, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है एजीआई? द पॉइंट वेयर मॉडल्स बिकम सो गुड दैट एआई कैन डू थिंग्स लाइक ह्यूमन। एजीआई एजीआई मीन्स जब एक मॉडल एक आदमी की तरह काम करना लगेगा तो उसको हम बोलेंगे एजीआई। अभी हम एएनआई है, जहां चैट जीपीटी एक ह्यूमन की तरह भी नहीं सोच सकता, ह्यूमन से बहुत नीचे है। तो आप स्लोली देखेंगे ये इनहैंस होगा और एजीआई की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, जहां जिसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ओके, उसके बाद वो मॉडल क्या करेगा? एक ह्यूमन की तरह सोचना स्टार्ट करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो एएसआई क्या है? आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इज नथिंग बट एआई becomes so good means better than each and every human combined presence in world। मीन्स जितने सारे ह्यूमन हैं अभी, सबको सोच के एक मॉडल बनेगा और वो सभी ह्यूमन से बेटर सोच सकता है। उसको बोलेंगे एएसआई, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। तो अभी हमने एआई के डायरेक्शन में कुछ भी अचीव नहीं किया है, हमने 1% भी अचीव नहीं किया है। अभी हमें 100 and 200% अचीव करना बाकी है एआई के डायरेक्शन में। तो आप सोच सकते हो कि एआई किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, एंड हाँ, बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, आप अगर आप सोचते होंगे कि जो एआई वाली कंपनीज है वो बहुत प्रॉफिट बना रहे होंगे, अभी चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। Because of lot of expenses, lot of investment, they are in huge loss. So ChatGPT is
in big loss. अभी उनको 15 बिलियन या मिलियन डॉलर्स का लॉस हुआ था लास्ट ईयर में, ठीक है। उसके पहले और भी लॉस हुआ था, उसके पहले साल में और भी लॉस हुआ था. So they are in huge loss, but as they are progressing in futuristic technologies towards AGI and SA, people are investing on such companies. Okay, but they are not making any profits. Okay. अभी कोर फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हम जाएंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग, reinforcement learning, computer vision, NLP, neural networks and use cases. ये सारी टॉपिक्स हम slowly cover करेंगे. Not in this session. I will go through at very high level what we are going to cover in depth once you will enroll for this program. But I'll give you the background at very high level. Okay. We'll discuss about human intelligence. Okay. Pattern recognition. कैसे एक जो मॉडल है वो सोचता है, कैसे पैटर्न डिटेक्ट करता है, कैसे वो आंसर देता है, ठीक है. सो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जैसे मैथमेटिक्स लाइक स्क्वायर ऑफ अ नंबर, सो स्क्वायर इज अ पैटर्न. अगर आप 2 into 2 देते हो तो आंसर 4 आता है, 4 into 4 देते हो तो 16 आता है. सो दैट इज नथिंग बट अ पैटर्न. Okay, so they recognize speech recognition, context, emotion, understanding that आप जो डिस्कस करते हो सीरी से डिस्कस करते हो, एलेक्सा से डिस्कस करते हो, सो दे आर ऑल एआई मॉडल्स. स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज एनालिसिस, जैसे आप कार नंबर प्लेट से जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो नंबर प्लेट डिटेक्ट करके जो फाइन करती है, वो अगेन एआई टेक्नोलॉजीज है. इमेज एनालिसिस का नंबर प्लेट से वो नंबर डिफाइन करती है, फिर डेटा फेच करती है और फाइन एज पर दी रेट कार्ड वो ट्रिगर करती है. ओके, सो वी कैन डू ऑल थिंग्स, ऑल सच थिंग्स विथ एआई. ठीक है, हम मशीन लर्निंग इन डेप्थ में जाएंगे. मशीन लर्निंग बहुत बड़ा टॉपिक है. आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस सेशन, बट once we will do the actual classes, we'll go in depth in details about machine learning. So ये machine learning is nothing but subset of AI. ओके, यहाँ पे बहुत सारे algorithms होते हैं, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है. ओके, सो एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आपने लोन फाइल किया बैंक में, ठीक है, तो इधर बैंक लोन एक्सेप्ट करेगी और रिजेक्ट करेगी. तो इसके लिए हमें मॉडल बनाना है. तो जो एग्जिस्टिंग डेटा है विच एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट एंड रिकॉग्नाइज पैटर्न, जो पहले से डेटा है कि किसने किसका किसका लोन रिजेक्ट हुआ है, किसका किसका लोन एक्सेप्ट हुआ है, तो ये डेटा अगर बैंक के पास है तो वो एक मॉडल को ट्रेन कर सकता है कि बेस्ड ऑन व्हाट डेटा, क्रेडिट स्कोर उसके पास होगा, सैलरी डिटेल्स होगा, एजुकेशन बैकग्राउंड होगा, ठीक है, कोलैटरल्स होगी, बेस्ड ऑन द डेटा लॉजिक फ्रॉम वेयर दीज मॉडल्स लर्न. बिना डेटा के मॉडल लर्निंग नहीं होता है, ठीक है. तो अगर सैलरी कम है, आपका क्रेडिट स्कोर कम है, ठीक है, आप कभी बैंक हुए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड सही नहीं है, तो बैंक रिजेक्ट करेगा. बैंक रिजेक्ट कैसे करेगा? बेस्ड ऑन वो मॉडल को बोलेगा कि ये दिस इज द पर्सन, दिस इज द आईडी, जस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट. So based on various data, he will model will scan the data, fetch the data, and decide the model will decide it's the application is going to reject or accept. Okay, so ये सारी जॉब्स हैं जो ऑटोमेट होने वाली है बेस्ड ऑन एआई मॉडल्स. ओके, ठीक है. अभी हम मशीन लर्निंग कंटिन्यूस है यहाँ पे, एक्सेप्ट और नॉट इन डिटेल्स में है. I'm not going in details because lot of topics I need to cover. जीमेल स्पैम का भी एक एग्जांपल ले सकते हो कि आपके आपके इनबॉक्स में जो भी ईमेल्स आते हैं, तो गूगल वालों ने क्या किया है, एक मॉडल ट्रेन किया है कि बेस्ड ऑन द डेटा दे हैव, they decide either Gmail is spam or genuine email. Okay, so it will come in inbox or go to spam. Okay, तो मशीन लर्निंग मॉडल्स काम कैसे करता है? पहले का जो ट्रेडिशनल मॉडल्स होते थे, ट्रेडिशनल डेवलपमेंट जो होता था, उसमें हम सिर्फ इनपुट देते थे, लॉजिक में काम करता था और आउटपुट मिलता था. लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल्स में क्या करते हैं, हम इनपुट के साथ आउटपुट भी देते हैं. आउटपुट मीन्स रिजल्ट. रिजल्ट्स क्या? जैसे फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल, हाँ, जीमेल का. तो जीमेल का
जो डेटा है गूगल के पास, वो लेबल करता है डेटा, ठीक है। जैसे जो भी स्पैम ईमेल्स आती है उसमें फेक वेबसाइट्स होता है, प्रमोशंस होता है, सेल्स की बातें होती है, एक्सटर्नल लिंक्स होती है, एक्सक्लेमेशन साइंस होते हैं। तो ये डेटा को वो लेबल करता है, ठीक है, और डिसाइड करता है कि वो स्पैम है या स्पैम नहीं है। अब बेस्ड ऑन दिस डेटा, मॉडल डिसाइड द जीमेल गोज इन विच डायरेक्टरी, ये इनबॉक्स में जाएगा कि स्पैम में जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है। बट हम इन डेप्थ में जाएंगे इसके बारे में और भी इन डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे कि लेबल डेटा क्या होता है और अनलेबल डेटा क्या होता है, एल्गोरिदम्स क्या होता है। सो दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिदम y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज फॉर स्ट्रेट लाइन। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे क्लासेस में, बट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स अबाउट दिस टॉपिक्स बिकॉज there are a lot of things I need to cover. Machine learning classification and algorithms, there are a lot of algorithms, linear classification, logistic regression, KNN, super vector machine, random forest, regression algorithm में linear regression, lasso regression, multivariate regression, ये सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। अभी दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स में होता है कि डेटा हमारा रैंडम है, ठीक है, अनरियलिस्टिक डेटा है, यहाँ वहाँ का जहाँ तहाँ का डेटा पड़ा हुआ है। तो हम उस डेटा को क्लस्टर करते हैं और क्लस्टरिंग में क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4 बना के डेटा को डिवाइड करते हैं। यहाँ हम थोड़ा डिटेल में जैसे एग्जाम्पल लेके करते हैं कि we have articles and we can divide these articles into categories and make clusters। जैसे न्यूज का डेटा है अपने पास, टेक आर्टिकल्स है, पॉलिटिकल आर्टिकल्स है, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स है, ठीक है। तो उसको हमने इस डेटा से निकाल के ये वाला कोई स्पोर्ट्स सेक्शन बनाया, एक और क्लस्टर पॉलिटिकल क्लस्टर्स बनाया, और एक सेक्शंस मैंने टेक आर्टिकल्स का बनाया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं साइबर सिक्योरिटीज का। So for example, we have one website where several users are logging in and one user is logging in 5 different cities in 1 minute। तो वो क्लस्टर में नहीं आएगा, ऐसा बहुत अनयूजुअल केसेस आता है जो इस क्लस्टर में नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो उसको हम एनोमलीज बोलते हैं। ये सारी चीजें हम इन डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। एक एग्जांपल देते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग कैसे काम करता है। जैसे आप Amazon यूज करते हैं, ग्रोफर्स हो गया, अभी जेप्टो आ गया, बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट है, तो आपको ये ऑप्शन देता है कि मिल्क के साथ आप ब्रेड भी ले लो या बटर भी ले लो। तो इसको क्या बोलते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस। तो ये क्या करता है, एनालिसिस करता है हाउ कैन आइटम्स कैन बी क्लब्ड विथ डिफरेंट आइटम्स। A lot of website like Amazon, Blinkit, Zepto and Myntra uses this algorithm, so these are the items can clubbed together। तो ये क्या अल्टीमेटली आपको बताता, आपके लिए भी इजी है कि आप अगर कुछ भूल रहे हो तो आप सेलेक्ट कर लो, और बिजनेस के लिए भी इजी है कि उसका प्रोडक्ट एक साथ बल्क में बिक रहा है। तो ये सारी चीजें लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो ये सारी चीजें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, कैसे काम होता है, बैकएंड में क्या होता है, कैसे डेटा फीड होता है, डेटा ट्रेन, मॉडल ट्रेन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम क्लासेस के समय पढ़ेंगे, ठीक है। मशीन लर्निंग का एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, कैसे मशीन लर्निंग का पार्ट ही है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें हम मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं। जैसे आपके पास कोई डॉग है, पेट डॉग, ठीक है, तो उसको कैसे ट्रेन करेंगे आप। अगर उसको आपने बोला कि ब्रेड ले आओ, अगर वो ब्रेड लेकर आ जाता है तो उसको आप +10 मार्क्स दे दो, या आप कुछ रिवार्ड्स दे दो, बिस्किट दे दो खाने के लिए, तो उसको लगेगा कि हाँ दिस इज करेक्ट। अगर आप उसको बोल रहे हो कि ब्रेड ले आओ, ब्रेड के जगह वो बिस्किट लेके आ रहा है, तो आप उसको -10 दे दो, या उसको एक थोड़ा सा एक थप्पड़ लगा दो, या -10 मार्क्स दे दो। तो लॉजिकली आप +10 और -10 या -20 पेनल्टी दे रहे हो या फिर रिवार्ड्स दे रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है कि डॉग का दिमाग ट्रेन कर रहा है कि कब उसको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, कब इसको पेनल्टी मिल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड्स ही थिंक कि नहीं, नेगेटिव काम नहीं करना है मुझे क्योंकि उससे पेनल्टी मिलता है। तो इन दिस डायरेक्शन की मॉडल ट्रेन बहुत अच्छे से होगा।
नेक्स्ट टाइम आप जब उसको बोलोगे तो वो सोचेगा कि नहीं, मुझे पेनल्टी नहीं चाहिए, मुझे रिवॉर्ड्स ही चाहिए, तो वो सही चीज लेकर आएगा। ठीक है, तो इसको री एनफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे री एनफोर्समेंट लर्निंग का एक पेट का है। दूसरा एग्जाम्पल जो अभी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे काम होता है? आपको पार्क असिस्टेंस मिलता है, आपको एडास मिलता है कि सामने से कोई गाड़ी आ गई तो गाड़ी कैसे ऑटोमेटिकली रुकती है, आपको पार्किंग असिस्टेंस मिलता है कि कार ऑटोमेटिकली कैसे पार्क हो जाए बैकग्राउंड में जाके। तो ये मॉडल कैसे ट्रेन होती है? अगर कार किसी ऑब्जेक्ट से धक्का लग जाता है उसको, तो उसको नेगेटिव पॉइंट्स दिया जाता है मॉडल को। तो नेक्स्ट टाइम जब वो मॉडल सोचेगा कि नहीं, नेगेटिव पॉइंट्स मुझे नहीं लेना, मुझे पॉजिटिव पॉइंट लेना है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको वो हिट नहीं करेगा। पार्क असिस्टेंस में ही वैसे जो मार्किंग है, पार्किंग मार्क्स है, उसके इधर उधर लगता है तो नेगेटिव पॉइंट्स दिया जाता है उसको, ताकि वो जब वो नेक्स्ट टाइम पार्किंग में जाए तो सही से पार्क हो और उसको रिवॉर्ड्स मिले। तो इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं आपको, जैसे आपका हो गया क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, सराउंडेड व्यू, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, पार्क असिस्टेंस, रियर कॉलिजन वार्निंग, पार्क असिस्टेंस, सराउंडेड व्यू। सो दीज आर द मॉडल्स। ओके, इतने सारे जो मॉडल्स हैं वो कार में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। सो कार कैन ड्राइव विदाउट ड्राइवर। ओके, सो ऐसे री एनफोर्समेंट लर्निंग को इम्प्लीमेंट करके सेल्फ ड्राइविंग कार पूरा डेवलप किया जाए गया है। जैसे आप टेस्ला का एग्जांपल ले लो, BYD का एग्जांपल ले लो, जो एडास का मॉडल है, जो अभी इंडियन कार्स में भी है, वो सारी मशीन लर्निंग लर्निंग मॉडल्स पे ट्रेन हुई है। तो ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल्स काम करती है। ठीक है, सो हाउ डू वी इम्प्लीमेंट? अभी तो हमने बात किया कि ये सारी चीजें एआई में, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो इसके लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पाइथन मैंडेटरी है, पाइथन आपको आना चाहिए। ओके, एंड यू हैव टू राइट पाइथन कोड्स। सो इसलिए हमने इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है कि आपको पाइथन आर ये सब सीखने का जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप एआई से रिलेटेड क्वेश्चंस फेस कर सको। क्योंकि ये मोस्टली क्लाउड फोकस्ड सेशन रहेगा हमारा, जहां हम इन डेप्थ क्लाउड सीखेंगे, बट पैरेलली हम एआई के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ एआई स्लाइड, बट I will go through some of the tools which is available in market. Okay, so uh, one of the tool is Grok. Okay, so this is again AI tool you can use like Chat GPT, but it will give you in-depth analysis better than Chat GPT. We have Note LM, and we have Google Gemini as well. So let's create a website with Chat Gemini. Suppose want to uh, you want to open a pet shop. Okay, so create website content for my pet shop. Hope my screen is visible. Vivek, can you confirm? Yes, your screen is visible. So this is the website content is generated by ChatGPT. ChatGPT. Now you can ask. You can ask to generate code. Write code front end code for website. So this is the code for your website. Okay. So आपका HTML code ready हो गया. Okay. Now you have to copy this code and you can go to any compiler, one compiler. Okay. Just delete this one and you can paste the code and you can click run. Okay, so this is how you can create your website in 5 seconds. Okay, so your website is ready. Shop now, book, grooming, they already put some photos and all. So
All these details they had already put in our website. You can copy this code and execute in, you can develop your websites. Okay, so any kind of website you can create. So again, you can write create create content for sports business, sports website. Okay, okay. Hmm, so content आपका ready हो रहा है. It hardly takes 10 to 15 seconds. Okay, so a lot of contents they are generating. This model is generating basically. Okay, let them finish. Okay, seven. So they are mostly what they are doing. They are basically creating the content, what all things you want in your website. Now you can ask write front end code for this website. Okay, so now it's generating the code, HTML code. Okay, so it will hardly take 5 to 10 seconds. So it's generating the code. So you can see how efficiently it is doing. So earlier website designing and all those jobs will go out from market. So you can copy here, you can delete your old code, you can paste here and run. Okay, so your website is ready. Home, news. So all the tabs are also working. This time it's not, they have not included some pictures and all, but you can always ask, you can also ask place some pictures in websites. Okay, so model is thinking right now. Okay, I have updated front-end code for both website to include. Okay, so this is the code snippet they have provided, so you can edit. Okay, so we have another tool, Google AI Studios. Okay, so you can ask, so basically it will give you in-depth analysis of your business, if you have queries, all the details which you cannot retrieve from ChatGPT or other models. Okay, but these are the very advanced tools you can use in your day-to-day life, and this is one of the tool is Kimi. Okay, letter Kimi. So Kimi is you can create slides, so you can ask create slides for cloud and AI class. Okay, and just give a prompt, so it will start working on your task. So the slides are ready. Okay, creating a file. So after 10 to 15 seconds you could able to download the slides as well. Okay, so this is one of the tool, and prefixility. Okay, so this is one of the prompt. If you want to search, just upload your profile. Okay, it's asking for the payment. I don't have the paid version, but what you have to do, you can upload files. Okay, and you can give options. History, let me go to the history. So I have given production support jobs in cloud plus cloud and AI, and the location is Pune. Okay, so they have given some detail options. Okay, then what I asked, find jobs and apply. Okay, so how it performed, they have sorted out the jobs in market
that is application support engineer in Citibank. Okay, level 2 production support job in Matchpoint Solution, and cloud support engineer is Wiz IT Services, and they have given the link as well to apply. Okay, so this is the job details. You can directly apply. So you can use these AI tools for applying the jobs. Okay, so it's very easy if you are starting working of these models, and you can start adopting these models in your day-to-day work. Okay, so we have init NIO as well. Okay, where you can create your own chatbot. Okay, so it will give you a drag drop options. Okay, and you can create your own agent like ChatGPT, Siri, and all. But for those things, you have to be very confident with your AI skills. That is ML concept and deep learning concepts. Okay, so that is all about AI. Uh, I will stop here for 10 to 15 seconds. If anyone have any questions, I will take. So Anjana, hope I have answered all of your questions. What we are going to cover in AI. Okay, thanks. What is the fee structure? Yes. So with this course, I hope I explained what we are going to cover in AWS. We'll continue this session with AWS because AI part is over now. For this demo, I'll go through with the course duration and course fee. That is, this is 100 hours course, and we will complete in 3 to 4 months. And the course fee was 20,000, but for this batch, our offering is 15,000 flat price for completing all these courses. That is AWS all together with SQL, Linux, networking. We will cover mock interviews, interview assistance, and all together with AI. Okay. Any questions from anyone? Okay, I'll take it as no. Now we will start the cloud part, and I will hand over to Vivek, and he will take the next part of AWS. Yeah, Vivek, over to you. Hello. Hello, guys. Uh, am I audible? Yes, Vivek, you are audible. Yeah, thank you, You, guys. you can share your screen if you want. Yeah, of course. So I'm just giving the one things overview, high level overview. So when you're working this cloud dashboard, okay. So guys, so before starting that one, we can say what we have learned to in a cloud. So cloud having the lot of applications, 1,000+ applications is there. Okay, so where we have to learn everything one by one. Okay, so most important things if we going from that one, so that is a EC2. Okay, so EC2 we can just like that we can generate the uh, making the server instance where you have to install your applications which you are want anything. जैसे सर ने बताया था कि आपके लिए जो वेबसाइट के लिए कोड लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, वो कैसे इनका यूज़ करेंगे हम रियल टाइम में. ठीक है, आपने कोड एआई से जनरेट किया, बट उसके लिए
कहाँ पे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ये हम आपको बताते हैं। जैसे क्लाउड में यहाँ पे भी आपके लिए कोई कोडिंग नहीं चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे मैं आपको एक सर्वर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, सिंपल चीज़, आपको जो भी आप सर्विसेज आप यूज़ करना चाहते हो, EC2 ये जो भी सर्विसेज रहती हैं, तो आपको यहाँ पे जाके ना सर्च करना पड़ता है। क्लाउड में लॉगिन करने के बाद में आप सर्च करेंगे, ये आपके पास में इस तरीके से ये आपके पास में ये विंडो आती है। बट यहाँ पे आने के पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे क्या होता है कि ये AWS की क्लाउड जो सर्वर्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसके अवेलेबिलिटी जोन है, कौन कौन सी रीजन अवेलेबल हैं, ये सर्विस ग्लोबल है या रीजनेबल ग्लोबल है, हाउ कैन यू एक्सेस ऑन दैट वन। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप मुंबई की इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में, मुंबई में और हैदराबाद में है। आपको मैं दिखाता हूँ कि AWS अवेलेबल AWS रीजन, ठीक है। तो आप ऑफिशियली पे आप जाएंगे ना यहाँ पे, ओके वन सेकेंड दैट वन। लोकेशन, yes, let me sign in, ओके। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपकी लोकेशन जितनी सर्विसेज हैं आप ये देख पाएंगे। प्लस मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता था, वो है आपकी जियोग्राफी लोकेशंस, यस। ये आपकी कहाँ कहाँ पर लोकेशंस हैं, अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, ये आपके लिए पूरी यहाँ पे लिस्ट आपके पास में आती है कि AWS ने किस किस जगह पे आपके अवेलेबिलिटी जोन्स, डेटा सेंटर्स बना के रखे हैं जहाँ से हम डेटा को फैच करते हैं और वहाँ पे अपनी मशीन को इंस्टॉल करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में मिलती है। मैं आपके सामने अभी एक मुंबई लोकेशन में जाके यहाँ पे हूँ, आप नॉर्थ वर्जीनिया, यहाँ पे बैठ के आप नॉर्थ वर्जीनिया US या कहीं पे भी बैठ के आप सर्वर बना सकते हो। मैं मुंबई लोकेशन पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ आपके सामने, कैसे बनाते हैं, सिंपल चीज़ है, आप डैशबोर्ड पे जाइए, यहाँ पे इंस्टेंस इज नथिंग, डेट इज क्या होती है, एक मशीन्स होती हैं जहाँ पे आप लोग अपनी एक मशीन इंस्टॉल करते हो और जो भी आपको डेटाबेस या वेबसाइट या लोड बैलेंस, स्टोरेज पर्पस जो भी आपको करना है, आप सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्च पे जाइए, सिंपल चीज़ है। फिर हमने एक मान के चलिए यहाँ पे हमने दे दिया ऐप सर्वर, कोई भी जो भी हम बनाते हैं, वन वन करके आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद में AWS आपको फैसिलिटी दे देता है, इसे इमेज बोलते हैं, यानी कि जो भी आप मशीन पहले इंस्टॉल करते थे आप पे ऑन प्रेमिसेस में, डेटा सेंटर वगैरह, तो वहाँ पे ये ऑलरेडी बनी बनाए रहते हैं। यहाँ पे हमने AWS का ये लॉन्च किया, मशीन चूज़ की। इसके बाद में यहाँ पे आप नीचे जाएंगे और ये यहाँ पे की पेयर इज नथिंग, इज ए पासवर्ड होता है। आइदर आप यहाँ से आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे जाओ, क्रिएट पे जाओ, यहाँ से लिख दो एनी की, MM की, ये प्रकार का पासवर्ड होता है टू दी आपके सिक्योरिटी पर्पज से। हमने ये लॉन्च किया तो ये यहाँ पे आपके लोकल डेस्कटॉप पे ये लॉन्च हो जाती है गाइस। तो इस तरीके से ये पासवर्ड की एक की रहती है, ये आपको देख पाओगे कि कैसे आप इंस्टेंस को लॉगिन कर पाएंगे। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, की चूज करने के बाद में यहाँ पे नेटवर्किंग पार्ट में जाते हैं। नेटवर्किंग पार्ट मतलब कि आपको जो सर्वर है आप बनाएंगे, एक्सेस कैसे करना है, ग्लोबली करना है या प्राइवेट रखना है, तो ये हमारे पास में ऑप्शंस रहता है कि आपका सर्विस पब्लिकली आपको दिखाना है कि आपके लिए ऑन प्रोसेस के लिए प्राइवेट कर सकते हो और ट्रैफिक के लिए अलाउ, और ये सब चीज़ें आप करते हो यहाँ पे। इसके बाद में दिस द स्पेस के लिए रहता है कि आपको लिए जो सर्वर बनाएंगे उसमें कितनी GB डाटा चाहिए, कितना नहीं चाहिए, ये सारी होती हैं। उसके अलावा इसमें क्लासेस रहती हैं आपकी कि आपके लिए कौन सी क्लासेस में आप जाने चाहने वाले हो, जैसे IO1, IO2, GP2, GP3, इस तरीके से आप लोग इनपुट आउटपुट थ्रू पूरा निकालते हैं। फिर इसके बाद में आप इसको लॉन्च करते हो। लॉन्च करने के पहले ही मान के चलिए
डेवलपर ने बोला कि मुझे मेरे लिए एक वेबसाइट आप बना के दो, या एडवांस में जाओ आप, और नीचे ये पूरा का पूरा एक कोड का ऑप्शन आता है। इधर आपके पास में जो डेवलपर ने आपके लिए पूरा कोड दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फाइल चूज करके आप फाइल चूज कर लो, या फिर आपके पास में भी कोई कोड है पहले से, तो इस कोड को सिंपल सा कॉपी करो यहाँ पे और पेस्ट कर दो। ठीक है, इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा, सिंपल सी चीज़ है कि एक सेल स्क्रिप्टिंग में लिख रहा हूँ, ये विन बैश में लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये मैंने यम इंस्टॉल यम अपडेट से मैंने अपडेट कर रहा हूँ, और ये HTTP PHP ये पूरा से इंस्टॉल पैकेज कर रहा हूँ। और जो डेवलपर ने ये कोड दिया था, सिंपल कोड है, हमने ये लिख लिया छोटा सा कोड। ठीक है, इसके बाद में आप इसको लॉन्च करो। यहाँ पे विद इन 2 मिनट्स के अंदर आपके पास में एक मशीन रेडी हो गई। आपने जो डेवलपर ने कोड दिया था वो लॉन्च हो जाएगा आपका गाइस। यहाँ पे ये मेरा सर्वर बनाया हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इनिशियलाइज हो रहा है। इनिशियलाइज का अर्थ होता है कि ये मशीन आप AWS से बोल के आप अपनी लोकेशन से बैठ के आप उसको रेडी करवा रहे हैं। यहाँ पे जैसे 3x3 आता है, इसके बाद में हमारी मशीन ये रेडी हो जाएगी। इसके अलावा अब आप जो भी आपने मशीन को कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखेगा। यहाँ डिटेल में आप जाएंगे, आपकी इंस्टेंस की आईडी क्या है, पब्लिक आईडी क्या है, प्राइवेट आईपी क्या है, इसका इंस्टेंस स्टेटस क्या रनिंग में है, पब्लिक डीएनएस क्या रहेगा। इसके बाद में अलार्म, आपको मॉनिटरिंग करना कि आपका सर्वर रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रॉपरली जैसे आपका मशीन चालू होता है ये वाला, तभी नॉट डेटा इज नॉट अवेलेबल। जैसे आपकी मशीन इनिशियलाइज होती है, उसके बाद में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। अभी धीमे धीमे यहाँ सिक्योरिटी पार्ट में आप जाएंगे, तो एक सिक्योरिटी ग्रुप बनता है कि आपकी मशीन में किसके लिए एक्सेस करने के लिए आप अलाउ कर रहे हैं, किसको नहीं अलाउ, आप उसकी सिक्योरिटी भी कर सकते हो। प्लस नेटवर्किंग पार्ट में जब जाएंगे तो एक BPC बनता है, BPC सबनेट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चीज़ के लिए जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी ये डिफ़ॉल्ट लेता है, यदि आपके पास में आपने कुछ नहीं दिया तो AWS आपके लिए ये पूरा का पूरा ये डिफाइन करके देता है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे आपकी मशीन ऐसे बनती है, और आपको जाके यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश करके चेक करोगे कि आपकी मशीन रेडी हुई है या नहीं हुई है। 2 मिनट बाद में रेडी हो जाएगी। जैसे सारे चेक्स होते हैं, पूरे पास होने के बाद में आपकी मशीन रेडी होती है। मीनवाइल आपने जो कोड दिया हुआ है, चेक करना है कि आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है कि नहीं हो रही है। आप पब्लिक आईपी को इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और इसको यहाँ पे जाके आईपी को आप चेक करोगे। मैं आईपी रखो डालने के बाद में ये साइट लिए पूछेगा कि कंटिन्यू, यस। तो मैंने क्या किया, वर्ड वैली की एक साइट बना के रखी है, इसका वेलकम पेज। ठीक है, और यहाँ पे आप उसकी जो लिंक की मैंने दी थी, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपकी वेबसाइट पूरा रेडी हो जाएगी वर्ड वैली की। तो ऐसे मैंने एक रेस्टोरेंट की पूरी वेबसाइट बना दी। आपने पूरा कोड लिख दिया, आपने कुछ नहीं किया, डेवलपर ने पूरा कोड दिया, आपने जाके सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, ऐसा AWS इंजीनियर के लिए। तो इस तरीके से आपने एक मुंबई लोकेशन पे, मैं आपको और दिखाता हूँ इस तरीके से हमने क्या किया है। आप चलते हैं डायग्राम पे। तो कंपनी के अंदर क्या होता है, ये हमने बनाया हुआ बनता कैसे है, अपन इसको हम दिखाते हैं, छोटा डायग्राम आपके लिए। ये क्या रहता है, ये है एक BPC, यहाँ पे हमने इसको बोलते हैं BPC। ये रहता है इस तरीके से। व्हाट इज VPC? वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे जैसे कि आप नेटवर्किंग बना रहे हैं आप, ठीक है, तो ये BPC यानी कि प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हो, जो कि आपके प्रॉपरली से किसी कंपनी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, कहीं पे भी। तो ये बनता कैसे है, तो सपोज करो एक मेरे पास में एक लोधा नाम का या कोई भी गोदरेज प्रॉपर्टी कोई भी बिल्डर आया, उसने क्या किया, उसको एक जमीन पे बिल्डिंग खड़ी करनी है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्लाउड पे रहता है। ठीक है, तो इस बिल्डर ने क्या किया, इसने पहले नंबर देखा कि मुझे किस लोकेशन पे जाके एक बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो ये लोध है जो करके बिल्डर रहेगा, तो पहले क्या ढूंढेगा, किस लोकेशन पे बनाना। तो ये चूज करेगा लोकेशन, हमने चूज किया मुंबई। जैसे कि हम कहाँ बना रहे हैं अपनी मशीन, मुंबई पे। मुंबई में बनाने के बाद में
अब वो देखेगा कि उसके पास में एक जमीन है, ठीक है, ये जमीन समझ लो या प्लॉट समझ लो बड़ा, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लो, थोड़ा सा ऐसे। इसके अंदर 3 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं, ठीक है, ऐसे। इसको रख करके ये 3 अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि उसने क्या किया, इस बिल्डिंग में 3 प्लॉट बनाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन, ऐसा क्लाउड की लैंग्वेज में, ऐसे, ठीक है। इस क्लाउड के अंदर हम बनते हैं सबनेट, जो कि आपकी एप्लीकेशन में मैंने आपको दिखाए थे अभी, ऐसे, कंट्रोल। आपको मैं दिखाता हूँ हमने क्या क्या बना दिया अभी। अपन चलते हैं अपने क्लाउड के इंस्टेंस पे। देखिए, आप नेटवर्क में जाएंगे तो ये बीपीसी आपको दिख रहा है, बीपीसी आईडी, ये हमारी बीपीसी आईडी बनी हुई है, कौन से, यहाँ पे डायग्राम पे हिसाब से ये हमारा बीपीसी बन गया। इसके बाद में हमने क्या बनाया, सबनेट, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ये अवेलेबिलिटी जोन आपको दिख रहा है, ये अवेलेबिलिटी जोन ये होते हैं कि अपनी जियोग्राफिकल हिसाब से यहाँ पे 3 अवेलेबिलिटी जोन है हमारे पास में, तो ये 3 अवेलेबिलिटी जोन हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। जैसे मुंबई में 3 हैं, आप कहीं और जाएंगे जैसे कि नॉर्थ वर्जीनिया में जाएंगे, वहाँ पे 6 अवेलेबिलिटी जोन है, कहीं पे 3 है, कहीं पे मिनिमम 2 है, हर जगह पूरी वर्ल्ड में, और कहीं कहीं पे 3 है। अपने हैदराबाद में है इंडिया में, और अपने पास में है मुंबई लोकेशन में। तो अपन मुंबई में बात कर रहे हैं कि हमने अवेलेबिलिटी ए जोन पे काम किया, फिर यहाँ पे अवेलेबिलिटी बी, इसको नाम दे दो बी, ऐसे होता है, एपी साउथ बी और एपी साउथ, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको सी नाम दे दो आप। ये आपका अवेलेबिलिटी जोन बन जाते हैं। इसके बाद में हमें क्या बनाना पड़ता है, सबनेट बनाना पड़ते हैं। तो सबनेट कहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे गाइस, ये आपका सबनेट होता है, ये वाला सबनेट। तो स्ट्रक्चर आपका इस तरीके से बनेगा, आपका सबनेट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोल दो सबनेट, ये वाला, ये हो गया सबनेट। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ SUV1 करके, ठीक है। ये आपका सबनेट होगा। सबनेट किस लिए होते हैं, ये एक्चुअल में ये समझो कि ये आपकी प्लॉट हो गया, प्लॉट नहीं, ये आपकी पूरी जमीन हो गई, ये आपका क्या हो गया, पूरा प्लॉट जो आपने बनाए हुए हैं, समझो प्लॉट के अंदर आपने क्या बनाई, ये बिल्डिंग बनाते हो आप, ठीक है, बिल्डिंग बनाई, और बिल्डिंग के अंदर आप बनाते हो क्या, फ्लैट बनाते हो, ठीक है। तो ये हम फ्लैट बना रहे हैं, इस फ्लैट में क्या रहता है, ये अपने फ्लैट समझ लो। फ्लैट इज नथिंग, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, ये हमारी EC2 मशीन है जो हमने बनाई हुई है, ये अपनी क्या है, EC2 मशीन, ये वाली, इसको हम EC2 मशीन बोलते हैं। अब ये आइदर आपकी प्राइवेट हो सकती है या पब्लिक हो सकती है। हम प्राइवेट क्यों रखते हैं, यहाँ पे आपके एक इंस्टेंस नहीं बनते हैं, आपके मल्टीपल इंस्टेंस बनते हैं आपके सर्वर पर, ताकि आपको कहाँ पे नेट पे जाने के मतलब, यानी कि जो आप डेटा रखोगे, जैसे कि एक DB के लिए आप अलग बनाएंगे, वो प्राइवेट बनेगा, फिर एक वेब सर्वर बनता है, एक एप्लीकेशन सर्वर बनता है, इस तरीके से आपके सर्वर्स बनते हैं जो कि प्राइवेट रहते हैं, और कुछ पब्लिक रखे जाते हैं, ताकि नेट पे जाके कुछ पैकेज लेके आना है, कैसे लेके आना है, ये हम मशीन रखते हैं। अब इस EC2 मशीन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे सर्विसेज, जो भी बहुत सी सर्विसेज होती हैं जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड रहेंगी, जो कि हम इसको इंस्टॉल करोगे आप, ठीक है। इसके सर्विसेज के अंदर कौन कौन सी आएंगी, आपकी IAM आ सकती है, आपने लगा दिया, या फिर आपने EC2 में आपने कोई भी S3 बकेट बना रहे हैं, जो भी आपको बनानी है सर्विस आपकी सबनेट के अंदर, आप सर्विसेज सारे यहाँ पे बनाते जाएंगे। हमने एक EC2 सर्विस बनाई है आपके लिए। अब EC2 सर्विस के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है कि एक नेट पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक राउट टेबल रहती है, ठीक है, राउट टेबल इन AWS, उसका मैं एक इमेज लेता हूँ ऐसे।
ये राउट टेबल का एक सिंबल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहता है कि इसकी एंट्री होती है, किसकी, इसकी, यहां से इसकी कनेक्टिविटी रहती है, ये यहां से कनेक्ट होकर राउट टेबल पे जाएगा। राउट टेबल से कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पे एक IGW करके एक इंटरनेट गेटवे रहता है, ठीक है, IGW। ये IGW समझ लो कैसा होता है, सोसाइटी होती है अपनी ना, उसका गेट होता है, वैसे ही इसका सिंबल होता है यहाँ पे IGW, इसका सिंबल ये है। ऐसे इसको बोलते हैं IGW। और ये क्या करता है, अलाउ करता है नेट पे जाने के लिए आपको किसी भी चीज को, यानी कि जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे वो नेट पे जाएगा और नेट से आएगा। बट यहाँ राउटिंग टेबल में हम क्या करते हैं, इसमें किसके लिए अलाउ है, किसको नहीं है, इसमें इनकी IP एड्रेस पूरा की एंट्री यहाँ पे रहती है, ठीक है। और कोई बाहर से कोई हैकर है उसके अंदर ना आ पाए, अंदर आपका डेटा सेफ रहे। तो इन सब चीज़ों की पूरी सिक्योरिटी करने के लिए हमारे लिए यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप लगाए जाते हैं, राउटिंग टेबल और नेटिंग लगाई जाती है, कैसे हम डेटा को पब्लिकली करें, किसको प्राइवेट करना है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है पूरा हम AWS में सिर्फ बटन क्लिक करके बना सकते हैं। जो मैंने मशीन आपको बना के दिखाई है अभी पूरी की पूरी, ये पूरी मशीन जो मैंने आपको एक वेबसाइट यहाँ पे जो आपकी लॉन्च हो गई है यहाँ पे, ये वाली, तो ये लॉन्च हो रही है ना, इसके पीछे जो आपने विद इन अ सेकेंड, विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर पूरा ये बन गया, ये इसके पीछे इतना बड़ा डायग्राम रहता है। ये सारा पूरा नहीं है डायग्राम, बट इसके पीछे और भी सारी चीज़ रहती हैं। इसके ऊपर लोड बैलेंसर रहेगा, फिर आपका डेटा स्टोर करने के लिए आपके लिए S3 बकेट रहेगी, फिर आपका डेटा जो रहेगा कहाँ पे स्टोर रहेगा, रूट वॉल्यूम रहेगा कि डेटा वॉल्यूम रहेगा, कहाँ पे सेव करोगे, और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। इनकेस आपकी ये मशीन बंद हो जाए तो इस मशीन का एक रेप्लिकेशन भी आपको बनाना पड़ता है, तो कैसे बनाएंगे आप। तो ये सारी जो प्रोसेस है क्लाउड के अंदर हम सिर्फ GUI के थ्रू करते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये सेम मशीन जो यहाँ पे है, आप इसका रेप्लिकेशन भी आप यहाँ पे बना सकते हो। बिदरा सिम बहुत इजी है इन सब चीज़ों को, इस चीज़ का स्नैपशॉट या वॉल्यूम बना के कैसे इमेज बनाना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। यहाँ पे आप इंस्टेंस में जाएंगे, इंस्टेंस में जाने के बाद में एक्शन में जाओ, तो इंस्टेंस सेटिंग रहती है। तो इंस्टेंस सेटिंग में आप उसको, आपको बचाना है कि आपका ये कोई स्टॉप ना कर दे मशीन को, तो ये स्टॉप के लिए प्रोटेक्ट करता है। कोई टर्मिनेट ना कर दे तो उसकी यहाँ से आप सेटिंग चेंज करते हो, जैसे कि आप चाहो कि sorry to interrupt, Vivek, can you give some example, like if I have okay, I have to set up a company and I require CPU and memory and other infra related stuff. So yes. so company is giving a requirement for these things and you are starting from scratch. यस, तो आपके लिए यहाँ पे भी जैसे कि आपको CPU यूटिलाइज करना है, कुछ भी मॉनिटरिंग करनी है, तो आपके लिए सारी की सारी चीज़ें जो रहती हैं AWS के अंदर, आपके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आपके पास में ऑलरेडी आपके CPU यूटिलाइजेशन, नेटवर्किंग, बाइट्स कितने कितने चल रहे हैं। तो ये ग्राफिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एवरी 5 मिनट में आपके पास में ये पूरे लॉग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे लॉग्स यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं मॉनिटरिंग के। इसके लिए आपके लिए क्लाउड वॉच अलग करना पड़ता है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपके लॉग हों तो क्लाउड वॉच के लिए अलग से पूरा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। बट मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे कि मैं आपको, आपने ये 2 सर्वर बनाए, F1 F2। अब ये क्या हुआ कि न्यू जॉइनर आया आपके यहाँ, आपके सिस्टम में, और उसने क्या आपसे बोला गया कि इसको बंद कर दो, ठीक है, अभी के लिए नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, गलती से इसने बंद करने की जगह पे इसने क्या कर दिया, स्टॉप की जगह पे इसने टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, ये टर्मिनेट कर दिया। तो इससे क्या होगा लॉस, कि ये उसने टर्मिनेट किया तो ये मशीन जो रहती है आपकी, ये यहाँ से चली जाएगी। फिर इसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपने जो भी कोड लिखा था, वेबसाइट बनाई थी, जो भी बनाया था, सारा का सारा चला जाता है। तो आपके लिए इन सब चीज़ को प्रोटेक्ट करना हो तो AWS में इसकी फैसिलिटी भी है। आप इसको सर्वर को चूज करो, ठीक है, आप यहाँ पे एक्शन में जाओ और यहाँ पे एक्शन में जाके सेटिंग में जाओ,
और यहाँ पे चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन पे जाओ, इसको आप क्या कर दो, इनेबल कर दो, ठीक है, आप इसको सेव कर दो। सी नाउ यू कैन ट्राई हेयर, यहाँ पे रिफ्रेश किया और मैं इसको कोई गलती से इसको टर्मिनेट करने के लिए करे कोशिश भी, तो ये आपका टर्मिनेट नहीं होगा, आपके लिए एरर आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ बंद करने के लिए परमिशन देनी थी और टर्मिनेट करने की नहीं दी देना थी। तो इस तरीके से आप ये पूरा सेव कर सकते हैं सारी फैसिलिटीज। लॉक चेक करना है आप वो कर सकते हो, आप इसका स्टोरेज बढ़ाना है तो आप वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, स्किल अप स्किल डाउन, ठीक है, और लोड बैलेंसिंग करना है कि मान के चलो ये आपने वेबसाइट बनाई यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में, ये आपकी अपने वेबसाइट यहाँ पे आपने लॉन्च की, इसके ऊपर आपके यहाँ पे कौन लॉन्च करेगा, कितने ट्रैफिक्स बनेंगी, कितनी मशीन बनेगी, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक लोड बैलेंसर रहता है यहाँ पे ऐसे, ये होता है आपका लोड बैलेंसर जो कि आपके ट्रैफिक को पूरा कंट्रोल करता है। जैसे कि आप कभी ये देखते होंगे कि IRCTC में पहले आपको बहुत एरर आती थी, या फिर अमेजोन की जब सेल्स आती थी तो अचानक से जब भी सेल्स लगती थी तो बहुत सारे यूजर्स है ना अचानक से लॉग इन करते थे आपके सर्वर पर, वेबसाइट पे, तो 404 करके या 405 करके एक एरर आती थी पहले, जो आज से 8 से 9 साल पहले अमेजोन सेल का वेट कर रही थी। लेकिन आज की डेट में वो एरर नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसका एक रीज़न है कि वो लोग लोड बैलेंसर के थ्रू इस एप्लीकेशन को हैंडल करते हैं। आपकी एप्लीकेशन अमेजोन की मशीन यहाँ पे EC2 में ही है, बट उसके पहले ही वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लोड बैलेंसर ये देख चेक करता है कि आपकी ट्रैफिक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। ये जैसे कि आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, कि यानी कि इस मशीन की कैपेसिटी है 1 लाख को लेने की, सडनली आपकी मशीन पे 2 लाख लोगों ने क्या किया, एक्सेस करना शुरू किया, तो वो क्या करेगा, ऐसी एक मशीन और बना देगा। और जैसे आपने कहा कि और लोग बढ़ रहे ट्रैफिक, तो वो और मशीन यहाँ पे क्रिएट करता जाएगा। तो लोड बैलेंसर क्या करता है कि यहाँ से आप है ना इसको बोलते हैं स्केल अप, जहाँ पे आपकी मशीन जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली सेम एप्लीकेशन के साथ में यूजर्स के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एप्लीकेशंस आपको फंक्शन में जाके स्केल अप और स्केल डाउन की स्कीम करना पड़ेगी। आप चालू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी स्कीम पूरा चलना शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे कि आपका ट्रैफिक खत्म होता है तो आप इसकी मशीन ऑटोमेटिकली क्या होंगी, ये खत्म कर देगा वो अपने पास में जो कहते हो। तो क्या होता है कि AWS में जो मशीन हम यूज करते हैं या जो स्टोरेज यूज करते हैं वो पे ऐसा यूज है, यानी कि जितना आप यूज करोगे आप उतना ही आप उसका बिल पे करोगे, और जितना आप यूज नहीं करोगे उसका बिल पे नहीं करना पड़ेगा अपन को। ऐसा आर्किटेक्ट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में हमेशा ये डिमांड रहती है कि किस मशीन को हमें यूज करना है, कौन सी मशीन यूज नहीं करें, ये सारी चीजें। जैसे कि आप जाओगे कि मैं आपको एक मशीनों में दिखाता हूँ कि जैसे कि आपने कोई अपना खुद का एक मशीन बनाने जाओगे आप, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट कितना CPU चाहिए, कितना मेमोरी चाहिए, कितनी बड़ी मशीन चाहिए, वो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाओगे कहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो आप जाते हो ब्राउजर में, यह मशीन है कि आपको अमेजोन की लेनी है, मैक चाहिए है, उबंटू चाहिए है, विंडोज चाहिए है, रेड हैट चाहिए, ये सारी मशीनें आपके लिए अवेलेबल है, ये फ्री है। बट आप चाहते हो कि आपकी मशीन काफ़ी बड़ी चाहिए है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो AWS के पास में सारी मशीनों के लिए इतने सारे इमेज दिए गए हैं, जिसके लिए डिफरेंट आपके लिए इमेज बना रखी है, कॉन्फ़िगरेशंस कितना कितना है, पूरा सब कुछ दे रखा है, विंडोज़ के लिए अलग, लिनक्स के लिए अलग, ये सारे के सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। या तो हम जो जर्नी हमारी जो रहने वाली है, हम बहुत बेसिक से करने वाले हैं। इसके अलावा यदि आप जो मशीन बनाते हो तो आपकी सिक्योरिटी कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे एक रहता है IAM होता है। IAM में आप जाके पूरी सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो। आप कंपनी के अंदर यूजर्स ग्रुप टीम बनाते हैं, वो सारे के सारे रूल्स आप यहाँ बना सकते हो। इस यहाँ से यूजर से जाके मान के चलो मुझे इस यूजर्स क्रिएट करना है यूजर्स, तो यहाँ से आप जाके एक पे जाओ, क्रिएट क्लिक करो, और मैंने किया राम नाम का एक यूजर्स क्रिएट किया, यहाँ पे जाओ, और यहाँ पे भी आप कुछ चेक कर सकते हो पासवर्ड उसका क्या रहेगा। कई बार आप लोग कंपनी में काम करते हो कि आप किसी मशीन पे आए, आप एक नए यूजर्स हो, कि आप किसी टीम के पार्ट हो, क्या इंडिविजुअल हो, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें हम IAM के थ्रू दे सकते हैं। आप इधर ऑटोमेटिक जनरेट पासवर्ड कर सकते हो, यहाँ से शो पासवर्ड कर सकते हो, और या फिर अपना जो एडमिन रहेगा तो वो आपका पासवर्ड सेट कर सकता है। ये सारी फैसिलिटी भी हम कर सकते हैं यहाँ पे।
और यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद में आपको कोई परमिशन देनी है, क्या देनी है परमिशन, यानी कि किस चीज़ में एक्सेस है आपके लिए, आपको आउटलुक का, S3 बकेट का, इंस्टेंस का। तो आप यहाँ से पॉलिसी पे जाओ, अटैच पॉलिसी पे जाओ। तो यहाँ पे ऑलरेडी AWS ने काफ़ी सारी पॉलिसी बना के रखी हुई है अपने पास यहाँ पे, जिनका यूज़ करके आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मैं बोल दूँ कि EC2 करके, EC2 फुल एक्सेस, तो ये आप है ना यहाँ पे ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। फिर आप उसके लिए क्या करोगे, आप नेक्स्ट करके आप इसको एक्सेस दे दोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहता है, जितने भी आप चेक करना चाहो, आपका यूजर नेम क्या रहेगा, राम रहेगा, पासवर्ड रहेगा, ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पे करोगे, क्रिएट यूजर्स करोगे। आप करने के बाद में आपके लिए कंसोल का लॉगिन दे दिया, ये आपका लॉगिन हो गया, ठीक है। ये इसका नाम हो गया और इसका ये पासवर्ड हो गया, ये आपने बना दिया। आपने AWS के अंदर किसी टीम के अंदर आपको एक यूजर क्रिएट करना है, आपने क्रिएट कर दिया, आपने कंसोल दे दिया। आपको यदि मैं पासवर्ड दूं, मैं किसी और ब्राउजर में खोल लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं जाके इसको खोलता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी जो आईडी आ रही, अकाउंट आईडी, जो एडमिन जिसका ये यूजर था उसका आईडी ऑटोमेटिकली आता है। फिर IAM का यूजर्स नेम और पासवर्ड क्या होगा वो चेक करने के लिए हम यहाँ से राम लेंगे, ठीक है। ये वन टाइम ही दिखता है आपको, उसको पासवर्ड को भी आप कॉपी कर लो, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे रिटर्न टू यूजर, आपका यूज क्रिएट हुआ और मैं यहाँ से जाके इस पासवर्ड को डाल के यहाँ से करूँगा। तो आप देखेंगे कि आपका ओल्ड पासवर्ड, यानी कि ये पूछ रहा है कि आपका जो ओल्ड पासवर्ड था उसको आप चेंज करना है। तो मैंने ओल्ड पासवर्ड डाला, न्यू पासवर्ड मैंने डालना है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि पासवर्ड जो आपने पहले बनाया था कंपनी से, ओल्ड वाला ये था। ये आपसे पूछेगा कि आपका पासवर्ड सही है कि नहीं है, आपने कंफर्म किया, ठीक है। यस, कंटिन्यू साइन इन करो। ये आपके जो आपने एक यूजर क्रिएट किया था, तो आप यहाँ पे ये सारे परमिशन दे सकते हो। अभी मैंने इस यूजर्स के लिए केवल अकेला परमिशन दी थी EC2 मशीन बनाने के लिए। यदि मैं आपको यहाँ पे परमिशन देनी है S3 क्रिएट करने की बकेट, तो आप यहाँ पे S3 बकेट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सिर्फ अकेला जो परमिशन दी है यहाँ पे मैं परमिशन देता हूँ। इस तरीके से IAM का यूज करते हैं हम लोग। आप जाएंगे, आप क्रिएट बकेट करने जाएंगे तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगी, यहाँ पे जनरेट ब्लो, या फिर मैंने दे दिया माई बकेट, यहाँ लिख दो माई BUCK 111। मैं डिफॉल्ट परमिशन लेके आपके सामने क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा तो आपके लिए यहाँ पे एरर आ जाएगी, परमिशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके फिर से परमिशन चेक करो। तो ये सारी जर्नी हम AWS में सीखेंगे। हमारी जर्नी इस तरीके से, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन, 1000+ एप्लीकेशन है। आप अलर्ट सेट कर सकते हो, कोई व्यक्ति आपके अनअथराइज से एप्लीकेशन को डाउन कर रहा है तो कैसे आपको मालूम चले, या फिर आपको पास में ऐसा ऑटोमेशन करना है कि आपकी जो मशीन है, एक मशीन दूसरी मशीन को बंद कर दे। सुबह 6 बजे आप चाहते हो कि आपको सर्वर अप हो जाए और शाम के 6 बजे सर्वर डाउन हो जाए, सैटरडे संडे बंद रहे, उसको बोलते हैं API कॉल्स। तो ये सारी चीज़ें हम इस जर्नी में पढ़ने वाले हैं। आपकी बहुत सारी सर्विस सर ने दिखाई थी PPT में। इसमें स्टोरेज के लिए हम RDS पढ़ेंगे और अलर्टिंग के लिए हम आपका SNS, SQS, प्लस यदि आप लॉग चेक करना है तो क्लाउड वॉच में हम चेक करेंगे। स्टोरेज के लिए EVS, EFS, प्लस आपका S3 बकेट, इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए EC2, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग ने IAM पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद में आपका सिक्योरिटी ग्रुप आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं इस जर्नी में। इस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ईजी है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। AWS में मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू के हिसाब से आपका 60 से 70% आपका थ्योरी पार्ट है, जिसको आपको समझना है कंसेप्ट। प्रैक्टिकल मुश्किल से 15 से 20 मिनट का प्रैक्टिकल है आपका। या सो दिस इज फर्स्ट क्लास, सो आई विल बी गो इन डिटेल्स इन one by one later once we have to start the actual classes. Yeah, sir. Yeah, thanks Vivek for overview. But overall, the idea is to opt for
such courses where we can see very low coding is required. Okay, so even if AI side, or you can see in cloud side, there is no coding requirement mostly. So like the way you do shopping in uh, Amazon websites for purchasing anything, and you know all and every minute details of your uh, application, from where you are purchasing, buying, returning, and complaining and talking with help desk. So in the same way, you can see AWS as well. We have only drag and drop, but only you have to be very much familiar with the options what Amazon Web Services provides. तो मोस्टली आपको कोडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा for this course, and as per market situation, this is AWS plus I is in high demand, so you can always opt for this course. But we'll connect with you separately one by one, and we'll discuss in details if you are opting for this course. And with this note, I will close today's session, and thank you for your time, and wish you all have a good day. Thank you. I'll wait for 10 seconds if anyone want to clarify something or ask some questions, else we can close. Tick, 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 tick. Okay, sounds good. Thank you all. Thanks for joining. Have a good day. Bye. Thank you, guys. Thank you. Yes, so yeah, something you're saying something. No. Okay. Either online courses or offline. Means can I go to the? Yeah, this is the online classes. Okay, and here we have the classes on the weekend. Okay, Saturday, Sunday, and इसके बाद में आपका जो बाकी कोर्सेस रहेंगे कुछ वीकडेज में भी रहने वाले हैं और कुछ वीकेंड में रहने वाले हैं. तो क्लासेस आपकी ऑनलाइन लाइन रहने वाली हैं. Understood. या मोस्टली क्योंकि वर्किंग है तो हम लोग टाइमिंग वगैरह बात डिस्कस कर लेंगे. योर अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग कुछ क्लासेस हम लोग लेट नाइट लेते हैं, ठीक है, बनारस की, और मोस्टली वीकेंड पे हमारा AWS क्लासेस रहेगा आपका. Understood. Thank you. Anything else? Any questions? Anyone? ठीक है, then we can wrap up the call. Thank you guys. Bye bye.